Now it is in recording. Okay, so today's date, which is 23 April. Okay, right now, multiplication and division of division of division of integers. Okay, yes, Shivanshi Rajput, just a minute, beta. Just a second, huh? Yes, शिवेंशी राजपूत, बोलो बेटा, क्या कहना है आपको? बोलो शिवेंशी. Yes, you have to write. सर मैं शिवेन भट्ट हूँ. अच्छा, ओके, शिवेन भट्ट, बोलो बोलो. यस बेटा, बोलो. कुछ कहना था आपको? शिवेन राजपूत को कुछ कहना था. यस शिवेन, डू यू वांट टू से समथिंग? I can't unmute. Well, that's sorry. I am asking you to mute. Now, hold on a second. Now you try it. अभी ट्राई करो बेटा. हाँ. Sir, that you started that exercise 1.1, then that I have to write this one, what you are writing, Yes, that we have to yes. write. This you have to write it in your class notebook. चलो, ठीक है? Okay, come on everyone. So remember, the rules are right for both multiplication and division. If the signs, not signs, signs of both integers are same, then the answer will be positive. Okay, right? Okay, say for example, number 1, 3 into 3, what will be the answer? Right? Very easy question. Don't rub it. No, I won't rub it. Yes, Bhakti, 3 into 3 is what? 3 into 3 is 9. But will it be positive or negative? It's positive because both the integers are positive. Okay, number 2, -3 into -3 है ना, multiplication. तो क्या होगा आंसर? Both the signs are same. Parinita, Parini, Hari, yes. Bhakti is correct now. Labdi is correct. जब दोनों साइन सेम है तो भी वो आंसर पॉजिटिव आएगा बिकॉज माइनस माइनस बिकम्स प्लस इन मल्टीप्लीकेशन. यस शरण्या, बोलो बेटा. सर एक्सरसाइज 1.1 में आपने कहाँ तक लिखाया है? सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल किया था हमने, वो करते हैं बेटा. डोंट वरी अबाउट दैट. ये समझ लो पहले, ठीक है? ओके सर. गुड, ऑलराइट, समझ में आई ये? ठीक है. नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, नंबर 3, 12 divided by 4. What will be the answer? Yes, very good, Gaurav. Answer will be 3. Number 4, -12 divided by divided by
-4. What will be the answer in that case also? Yes. अरे ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जरा साइन तो देख लो. कौन है ये 48 वाला स्टूडेंट? जरा साइन देख करके काम किया करो, है ना? Yes, very good. So answer is 3 only because both the signs are same. Minus minus will become cancelled out, है ना? Here जरा ध्यान से बेटा, मैं बोल रहा हूँ two negatives, so it will become positive. In multiplication and negative, it will become positive. ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? Very good. Going to the next page now. Going to the next page. If rule is if the signs are different. Signs are different, then the answer will be negative कंपल्सरी, है ना? अगर अलग अलग साइन है और मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल है या डिवीजन का एग्जाम्पल, तो उसमें क्या होगा? यहाँ पे देखो 4 इंटू -3. आंसर क्या आएगा? करना है हमें मल्टीप्लिकेशन, वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन. 4 3 are 12, but there is one positive one negative, so the answer will be negative. Easy. सेकेंड वन क्या करेंगे हम? राइट, -4 इंटू 3. क्या आएगा आंसर? Yes, correct answer now also, right? 4 3s are 12. Sorry, hold on a second. Yes, again the answer will be -12. Okay, number 3 example, 15 divided by -5, or I can write it like this also, 15 upon -5. तो क्या आएगा आंसर? पहले तो सिंपल डिवीजन कर लेना है, वेरी सिंपल है ना, एकदम सिंपल से डिवीजन करना है. 5 3 जा 15, और क्योंकि साइन डिफरेंट है तो आंसर आएगा -6, है ना? नंबर 4, -15 डिवाइडेड बाय 5, क्या आएगा आंसर? -3. वेरी गुड, फिर से वही आंसर आएगा. ठीक है? यस. Now let's try. Let's see if you can understand, if you have understood this or not, है ना? नेक्स्ट एग्जांपल में जाएंगे. बहुत इजी है एग्जांपल, देख लो एक बार. ऐसा है तो स्क्रीनशॉट ले लो. As such, this session is being recorded. Okay, going to the next one. Okay, चलो ये एग्जांपल ट्राई करने हैं खुद से. नंबर 1. Okay, 3 इंटू -9, क्या आएगा आंसर? नंबर 2, -4 into -8, answer. Number 3, -5 into 6. Number 4, -5 -6 कर देते इसको, into -10, क्या आएगा आंसर? चलो करो, वन बाय वन सबके आंसर देखेंगे हम. फर्स्ट वन इज करेक्ट, सो मेनी स्टूडेंट्स. सेकंड वन इज आल्सो करेक्ट. गौरव पटेल, यस, वेरी गुड. देवांशी, ये कौन सा आ गया बेटा? ये कौन सा आंसर हो गया? हीर, यस, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड. इट विल बी बेटर इफ यू राइट आंसर 1, ये आंसर. सेकंड ऐसे एक ही सबमिशन में चारों आंसर करने, दैट विल बी गुड, है ना? चलो फर्स्ट वन का आंसर होगा 3 9 27, बिकॉज बट द साइंस आर डिफरेंट, सो -27 हो जाएगा, राइट? सेकेंड वाले में 4 8 32, माइनस माइनस हो गया प्लस. नेक्स्ट वन -5 6
30 हो गया, और 10 6 60 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड वेद, गुड जॉब देवांशी, वेरी गुड, राइट। चलो एक और ट्राई करते हैं हम, नंबर 5। अरे ये बार बार पिछली स्लाइड्स पे क्यों चला जाता है, ध्यान से, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। 2/3 इंटू -4, क्या होगा इसका आंसर, बताओ। इसका आंसर क्या होगा बताओ, ये जरा थोड़ा चैलेंजिंग रखा है मैंने, सोच के बताओ। नहीं अदिति, गलत आंसर है बेटा, इट्स अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय अ इंटीजर। वेद पटेल इनकरेक्ट, किया ऑलमोस्ट करेक्ट, थोड़ी सी गलती हो गई, लब्धि ऑलमोस्ट करेक्ट, थोड़ी सी गलती है, एक छोटी सी गलती है। सौम्या जिंजुवाड़िया इनकरेक्ट आंसर, नो हर्ष नहीं, इट्स अ फ्रैक्शन, यस शिवेंशी राजपूत ऑलमोस्ट देयर लब्धि, नहीं गलत कर दिया बेटा। अरे फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो क्या कुछ है ही नहीं, तो 4 2 हो जाएगा 8, डिनोमिनेटर एज सच, और माइनस साइन हो जाएगी, है ना, माइनस साइन हो जाएगी। लेकिन लेकिन -8/3, now what we have to do, it's an improper fraction, so we have to convert it into mixed fraction, है ना। so माइनस की साइन पहले आ जाएगी, 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 2s are 6, 8 minus 6 is 2, so 3 2s are 6 and 2/3, this is going to be fraction। अभी डरने कोई चिंता मत करना, ये वाला पोर्शन आपके स्टडी में नहीं है, मैं आपको सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ठीक है, नथिंग टू वरी, ऑलराइट, ओके, गुड गुड, वेरी गुड, ओके, नाइस। 2 -2 whole 2/3, yes Gaurav Patel, that is correct beta, good job, okay, very good, very good, yes that is, yes Tavan, you want to say something, oh Mr. Dave, Tavan Dave, where are you, I need to find you, Tavan Dave, yes Tavan बोलो। सर ये आपने जो क्वेश्चन बोला ना, उसे हम इजी वे में कर सकते हैं। कैसे बताओ। 2/3 है ना, और बाजू में इंटू -4 है ना, तो उसकी जगह 2/3 इंटू 1/-4 करके जो आंसर है उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। 1/4 क्यों करना बेटा, 4/1 होगा ना, पर वो चेंज होगा ना, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स नहीं होता है ना बेटा, डिवीजन में ही इनवर्स होता है, सिर्फ डिवीजन में इनवर्स होता है ना। हाँ सर, तो अगर डिवीजन होता ना तो हाँ तो डिवीजन करना की जगह पड़ता, इंटू का साइन आ जाता और वो चेंज हो जाता। करेक्ट, दैट इज करेक्ट, यस, गुड जॉब, वेरी गुड, दैट इज करेक्ट, ओके, नाउ हु एल्स, आंसर तो एक ही आएगा, नहीं आएगा ना दादी, अगर आंसर चेंज हो जाएगा, अगर इन्वर्स करते हैं तो आंसर चेंज हो जाएगा बेटा, राइट, ओके, चलो ये खत्म हुआ, अभी हम जाएंगे हमारी पीपीटी पर। मोहित पटेल वांट्स टू से समथिंग, बोलो मोहित। Sir, I don't understand this question, last one. Last one, it was Yes. just a challenge only, let me show you again, एकदम easy है बेटा, ये वाला तो बहुत easy है, सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन है, तो 2 4 8 हो गया, और दोनों की साइन अलग है तो -8/3 हो गया, फिर 8/3 को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, which is 8/3, Okay, sir. है ना, वेरी इजी बेटा, दिस इज वेरी इजी एग्जांपल, इसमें तो कुछ है ही नहीं पूछने जैसा। हाँ काव्य बोलो, काव्य सोनी अनम्यूट, जो आपने पहले लिखा है ना, हाँ वो मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है। कोई बात नहीं बेटा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है और बाद में मैं क्लास ग्रुप में अपलोड भी कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ हीर बोलो।
Sir, tomorrow Mr. Ma'am teach us na exercise 1.1. So I don't understand question number 5. Okay, we will get there. Don't worry. We are going there now. काव्या जरा बेटा 2 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन कर लो. देवांशी, हाँ बेटा बोलो. Sir, I was asking that can you start from first question? I have not understood it. Sure, no problem. So we'll go there from first one only. Where is the solution? सबको दिख रहा है ये? सबको दिख रहा है? Give me a thumbs up if you can see it on your screen. Good. Very nice. Very nice. Good to see so many thumbs up. Thumbs up की ऐड बन सकती है इसमें से तो, है ना? Right? Come on. So question number 1. Solution of questions on page number 4 from the textbook. Question 1. Following number line shows the temperature in degrees Celsius at different places on a particular day. हमने ये वाला किया था एग्जाम्पल, राइट? हमने 1 2 ABC तक किया था, तो वो फिर से एक बार देख लेते हैं. By observing the given data, यहाँ पे टेबल ये जो नंबर लाइन दी है उसके ऊपर से हमें एकदम इजीली ये तो रीड ही करना है, तो सबका हमने आंसर ऐसे लिख लिया. लाहौल स्पीति is -8 degrees Celsius, Srinagar is -2 degrees Celsius, Shimla is 5 degrees Celsius, Ooty is 14 degrees Celsius and Bangalore is 22 degrees Celsius. ठीक है? अभी temperature at the hottest place out of this, which is the highest temperature? 22, so that is hottest, and the coldest place is -8. So 22 -8 degrees Celsius, है ना? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आंसर आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, है ना? ये तो इजी है. किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? हाँ स्तवन, मुझे याद है, लेकिन जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंट ने कहा कि उनको डिफिकल्टी थी, और डोंट वरी, आई विल शेयर दिस पीडीएफ विथ यू ऑल. ठीक है? टेम्परेचर नाउ. क्वेश्चन नंबर सी क्या है? गोइंग बैक टू क्वेश्चन नंबर सी. व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर -2, है ना, और -8, तो दोनों में से डिफरेंस देखना है. तो क्या होगा हमें डिफरेंस? टेम्परेचर ये रहा. टेम्परेचर लाहौल स्पीति इज -8, टेम्परेचर श्रीनगर इज -2. टेम्परेचर डिफरेंस -2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस. ऐसा क्यों किया? क्योंकि बड़ा नंबर कौन है? -2. छोटा नंबर कौन है? -8. वी हैव स्टडीड दिस इन 6th स्टैंडर्ड, है ना? आप सबने ये पढ़ा हुआ है कि माइनस अगर साइन लग जाती है तो नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो लेकिन वो छोटा हो जाता है. ठीक है? Therefore, the temperature difference between Lahaul Spiti and Srinagar is 6 degrees Celsius. Next question is, can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla? Is it also less than the temperature at Srinagar? Let's find out. Temperature at Srinagar is -2. Temperature at Shimla is 5 degrees. Now together means adding. So if we add these two temperature of Srinagar and Shimla taken together is -2 plus 5 degrees Celsius. The answer is 3 degrees Celsius, right? And so what do we have? We know that 3 degrees Celsius is less than 5 degrees Celsius. 3 degrees Celsius is less than temperature of Shimla. But 3 degrees is more than -2, and that is why it is not less than at the not less than temperature than Srinagar, है ना? Okay. Right? Yes, Shivenshi Rajput wants to say something. बोलो राजपूत. सर आपने पहले जब वो करवाया था ना एक्सरसाइज 1.1, तब आपने क्वेश्चन 1 सी तक है ना दूसरी स्लाइड में दिखाया था, और मैंने वो क्वेश्चन कोई बात नहीं ए बेटा, बी ये और सी मैंने उसमें से लिख दिया था. कोई बात नहीं बेटा, वो भी तरीका सही है. ये अच्छे तरीके से लिखा है, मैंने टाइप करके अच्छे से किया, एक फ्रेंड से मैंने मांगा हुआ है ये. ठीक है? तो ये अच्छा रहेगा. ठीक है? दिस इज मच बेटर. ये अच्छे से प्रेजेंट तो किया सर हुआ था. दोनों लिखने नहीं, आपने जो लिख लिया उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है?
Okay, going to the next question. In a quiz, positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. If Jack scores in 5 successive rounds where successive मतलब एक बाद एक के बाद एक 25 minus 5 minus 10 15 and 10, what was his total at the end? All you have to do is add them all, है ना? 25 plus minus 5 minus 10 plus 15 plus 10, ऐसे करके भी कर सकते हो या फिर एक के बाद एक कर सकते हो. Now this is why I have been asking you, if you remember, जब आप लोग 5th में थे और मैं क्लास में आता था, राइट, जब मैं आपके क्लास में आता था तब मैं आपको क्या बोलता था कि कार के नंबर्स को ऐड करो, सबट्रैक्ट करो. अभी समझ में आया? 25 minus 5 20, 20 minus 10 is 10, 10 plus 15 is 50, 25, 25 plus 10 is 35. डायरेक्ट आंसर आ सकता है, समझे? दिस इज हाउ यू प्ले विथ नंबर्स. और हमारे पास एक ऐसा चैप्टर भी है, प्ले विथ नंबर्स, है ना? यस, ओके, चलो. Yes, this one, question number 2. Don't worry about writing right now. I will share these PDF with you. ठीक है? तब तक आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप बाद में क्लास खत्म होने के बाद में ले सकते हो. ठीक है? ओके. यस तवन, यस शिवेन, बोलो. सर आप चित्रांग अंकल को जानते हो? Who is चित्रांग अंकल बेटा? वो अयान वाले चित्रांग अंकल को जानते हो? I am not sure which one you are talking about. Why? Does he know me? Yes sir. Okay, okay, right, that's fine. Okay, no problem for that. Good, good. All right, let's go. Ansh, we have to write solution or we have to write question 5 in notebook? Yes, you have to write both. Okay, question number 3. Go into question number 3. At Srinagar, temperature was minus 5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius. You remember we had done the first worksheet, the live worksheet. तो ड्रॉप मतलब कम हो गया, तो -5 -2, आंसर क्या आएगा? -7 degrees Celsius. On Tuesday, what was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. Increased by 4 degrees Celsius. What is the temperature on this day? Right? You have to read and understand these words, है ना? Rose, drop. उसका मतलब क्या होता है वही समझ में आ गया, बस काफी है. राइट, वेरी इजी. बाकी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है, वो तो आप सबको अच्छे से आता है. राइट, सो ऑल यू हैव टू डू इज फोकस ऑन द वर्ड एंड रिमेंबर इट्स मीनिंग. टू ड्रॉप मतलब कम हो जाना, टू राइज मतलब इंक्रीज हो जाना, लेकिन राइज का पास्ट टेंस हो गया रोज, है ना? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज डन. राइट, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा. हाँ, लेकिन ये मत करना कि अगर ये मैंने 17 पेजेस शेयर कर दिए, क्योंकि ये 17 पेजेस में सारे पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन है, पूरे चैप्टर का सारा सॉल्यूशन है, वो हमें नहीं करना है. ठीक है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे करना है. अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? We have to find the vertical distance between this and this. So basically we have to add them both. 5000 plus 1200. What will be the answer? 6200 meters. है ना? वेरी इजी. कोई क्वेश्चन इसके अंदर? शिवेन सिंह राजपूत. अरे भैया कितनी बार बोलोगे? अच्छा ये तो कौन है? रुचा. Stavan wants to say something. Stavan wants to say something. ठीक है Stavan, just a second बेटा. Stavan बोलो. आपने जो अभी कहा कि ये आप वर्कशीट सेंड करोगे, वो वर्कशीट में मतलब सारे चैप्टर के आंसर लिखे होंगे? नहीं, सिर्फ इस चैप्टर के सारे आंसर्स.
एक एक करके मैं सारे चैप्टर्स की, जब तक मैं हूं आपके साथ तब तक मैं आपके साथ ये एक एक करके चैप्टर शेयर करता जाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर यहाँ तक तो कर दिया था मित्तल मैम के साथ, तो चलो फटाफट देख लेते हैं। मोहन डिपॉजिट्स 2000 rupees in his bank account and withdraws rupees 1642, so 2000 minus 1642 करना पड़ेगा। If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? अगर withdrawal minus है तो deposit क्या होगा? Plus. Find the balance in Mohan's account after the withdrawal, right? Since the amount withdrawal is represented by negative integer, the amount deposited will be represented by a positive integer, है ना? Amount deposited 2000, withdrawn minus rupees 1642. Balance in Mohan's account, money deposited plus money withdrawn. So 2000 plus minus 1642, which is 358. तो बस उतने ही रुपए बच गए, है ना? राइट नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। ये मेरे फ्रेंड ने जब तैयार किया था तब रुपीस का साइन ऐसे था, अभी रुपीस का साइन ऐसे है, तो इसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे? ये वाला साइन, ठीक है। यस एवरीवन, है ना? ओके राइट, ऑल राइट, ओके डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, चलो। Rita goes 20 kilometers towards east from point A to point B. From B, she moves 30 kilometers towards west along the same road. है ना? एकदम इजी है। यहाँ से 20 किलोमीटर चली पहले इस तरफ, है ना, और फिर यहाँ से 30 किलोमीटर चली। How will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? Distance toward east is by positive integer. The distance traveled towards west will be minus, right? Distance traveled in east direction is 20. Distance traveled in west is minus 30. So 20 plus minus 30, answer will be minus 10 kilometer. So she has traveled minus 10 kilometer, right? We can say she has traveled 10 kilometer in the direction of west, or we can say minus 10 kilometer. Rita is now in west direction, you can say it, okay? Yes, very good, very good. Okay, going to the next one. In a magic square, each row, column and diagonal has a sum. Check which the following is a magic square. Magic square we had done it in 5th standard also, and 6th standard also you have done. Last year we had one activity. This is directly solution given, which is right, but which one is wrong and which one is not, we have to find out, right? Check which of the following is a magic square. तो इसमें क्या करेंगे? इन तीनों का सम क्या होगा? 5 minus 5 0, एडिशन करना है ना? तो हम क्या करेंगे? 5 plus 5 plus minus 5 0 plus 0, क्या होगा इसका एडिशन? इसका एडिशन क्या होगा? इसका एडिशन क्या होगा? 0। इसका एडिशन 0, इसका एडिशन 0, ठीक है, वेरी गुड। अभी ये तो 3 कॉलम्स हो गए, अभी रो पर देखेंगे। 5 minus 1 minus 4, तो इसका भी 0 हो गया। minus 5 minus 2 minus 7, तो इसका भी 0 हो गया। और 0 3 minus 3, तो इसका भी 0 हो गया। तो रो एंड कॉलम आर मैचिंग। नाउ लेट्स चेक फॉर डायगोनल। 5 minus 2 minus 3, तो हो गया 0, लेकिन क्या इसका होता है? फोर माइनस 2, तो हो जाएगा -6, और यहाँ पे तो 0 है, तो ये 0 यहाँ पे आएगा -6, विच इज नॉट 0। तो स्क्वायर 1 और रादर स्क्वायर 1, इट्स नॉट अ मैजिक स्क्वायर। नाउ सेकंड स्क्वायर देखते हैं हम, इसमें हमें सब में करना पड़ेगा। तो इसमें हो रहा है क्या? कॉलम में हो रहा है 7 minus 2 0, तो यहीं पे तो ये तो हो गया -9 हो गया, तो कैंसल, ठीक है, राइट।
ओके, each row and diagonal, अच्छा सॉरी, इसका तो हो रहा है -9, यहाँ पे क्या हो रहा है -10 -3 +4, तो हो जाएगा -9, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे भी -9 हो रहा है। अभी रॉस देखते हैं, -10 + 1 तो -9 होगा, यहाँ पे तीनों के तीनों -9 होंगे, यहाँ पे 7 - 6 13 -13 + 4 इज अगेन -9, तो ये तो हो रहा है यहाँ पे सब। अभी डायगोनल देखेंगे, 7 - 3 -7 - 3 that is -10 + 1 is -9, so डायगोनल भी हो रहा है और ये डायगोनल भी हो रहा है -9, so square 2 is also a मैजिक स्क्वायर। यस, मैजिक स्क्वायर। भक्ति, मैजिक स्क्वायर समझ में नहीं आता, ये तो बहुत इजी है बेटा, राइट? मैजिक स्क्वायर तो बहुत इजी है, राइट? मैजिक स्क्वायर आपको देखना है तो क्या करेंगे, मेरा 5th स्टैंडर्ड का एक वीडियो देख लो, लास्ट ईयर मैंने ये अच्छे से समझाया था क्लास में। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे फ़ोन कर लेना, है ना? आज एक काम करो, 1 बजे मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? तो मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है। ठीक है, चलो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई a - -b = a + b। ओके, ये हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है? वेरीफाई a - -b = a + b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे a = 21, b = 18 हो गया। a - -b तो 21 माइनस, यहाँ पे जब माइनस होगा, अगर माइनस के फिर से अगर माइनस होता है तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ, इट इज माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस हो गया। और हमें पता है जब दोनों सेम माइनस, दोनों साइंस अगर सेम है और मल्टीप्लीकेशन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव, है ना? यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? Yes, I had given challenge in the magic square challenge. Yes, you are right, Devansh. You remember from 5th standard. Very good, very good. Right? So it is going to be the same, है ना? a - -b = a + b, ये लिखना है। यहाँ पे थोड़ा रह गया ये, है ना? a + b = also, right? Therefore आपको पता है ना ये साइन a है therefore की, तो a - -b = a + b। ये आंसर हमें हर बार हर एग्जाम्पल में लिखना है, ठीक है? यस एवरीवन? हाँ, हीर को कुछ कहना है। हीर, बोलो हीर, क्या कहना है? Sir, I don't understand this one. Which one? ये आपने जो क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन 8, that one. ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, चलो समझा देते हैं फटाफट से। अरे 1 ही मिनट बाकी है, ये तो 1 ही मिनट बाकी है, 1 ही मिनट बाकी है। चलो फटाफट करते हैं। चलो कहाँ मेरे मेरी, हाँ ये, ठीक है? अभी देखो, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन वाला किया था, तो -1 है ना, -3 है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना हीर? तो आंसर क्या आएगा, -2, ठीक है? तो हमेशा ये याद रहे कि a + b है, तो इसको हम a - -b लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस। जैसे कि 21 + 18 क्या होगा आंसर, 39, ठीक है? और 21 - -18 वो हो जाएगा 21, फिर से +18 हो जाएगा, तो बन जाएगा 39, ठीक है? और बाकी के एग्जांपल्स हम फिर कल देखेंगे, ठीक है? यस एवरीवन, आई होप हियर यू हैव अंडरस्टूड दिस, इफ नॉट वी विल कंटिन्यू टुमारो, ओके? ऑलराइट देन, दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन, बाय बाय।